Hi everyone. Okay, so hope hi. Great guys. So you're able to hear me. So basically मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं, we are doing it with one of the students of Philippines, like she's studying in Philippines in University of Perpetual Health, which is in Manila. एंड ये सेशन हम इसलिए रहे हैं बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो स्टूडेंट्स को रहती है कि भाई ये जो फिलीपींस है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, एनमेट एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं, क्या डिफिकल्ट होते हैं एनमेट एग्जामिनेशंस, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए. तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Once all the attendees will come, like in 5-10 minutes, I'll join her also. तो अभी अगर कुछ क्वेरीज हैं प्लीज यहाँ पे आप लिखते रहिए. आई कैन सी योर मैसेजेस एंड डेफिनेटली आई कैन answer them, all of them, especially for Philippines. आगे हम यूक्रेन वगैरह के भी स्टूडेंट्स को लेके आएंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग उनसे भी उस कंट्री के बारे में पूछ सकें. सो राइट नाउ विल टॉक अबाउट फिलीपींस. ओके. सो एक छोटा सा पोल आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि आप मुझे पता चले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज में. प्लीज आंसर. हाँ बिका. Some people don't want. Maybe your decision will change after this. Maybe. 73% are saying yes. Okay. अभी 8, 9, 10, 11 लोगों ने आंसर दिया है. And we have 18 participants. Also, tell me what are your questions about Philippines में पढ़ाई करने के लिए क्या क्या questions हैं आप लोगों के, और कौन से और भी ऑप्शंस हैं आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऑप्शन भी मेरे दिमाग में चल रहा है, तो हम उसको कंपेयर भी करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनसे कंपैरेटिवली कैसा है. आई कैन अलाउ टू टॉक फ्यू ऑफ देम इफ यू आर इंटरेस्टेड टू verbally ask the question also. I can do that. Okay. Till? No, it will start. Okay, 75% लोग कह रहे हैं कि they are interested. So should I end the poll? Also keep typing your
If we are not able to clear FMG, what we will do afterwards? Very good question. It is for any country you'll choose. कोई भी country को आप choose करते तो ये तो रहता ही है कि अगर आप FMG ना clear कर पाए तो कैसे होगा? So it's a common question and definitely I'll take this up at the end of this session. Okay. So we can join Bhavika with us. Bhavika, can you start your video and we can start? Let me try. Or I have to allow you. क्या आप कर सकते हो? You can start your video. Oh, wait. Let me check. You are not able to. Let me see. You cannot start your video because the host has to stay. I have not. Let me try. और आपका, what about your voice? Yeah. Only the voice. Can you hear me? Yeah. कि आप ऐसे बोलो, मैं अभी चेक कर रही हूँ सेटिंग्स वगैरह. तो भाविका, आप अभी 4th ईयर में पढ़ रहे हो वहाँ पे? हाँ, yeah. Okay, and what about like सबसे पहले इस क्वेश्चन यही है सारे स्टूडेंट्स का about your NMAT and about BS course. तो उसके बारे में आप कुछ बताइए. NMAT is just like an entrance examination for entering into colleges, like in medicine course. But I think from now this year, they have not made it mandatory to pass or clear the NMAT. You have to just appear in the NMAT and you can get an entry in the MBBS course. Okay. It's like that. All right. And but initially it was like for my college, like I'm studying in UPHS, University of Perpetual Health System Delta. So for it was. अब try करो video. Okay. Yeah. Hi. चलिए, अब आप आ चुके हैं में. तो हाँ, so basically 2 questions हैं हमारे यहाँ पे. What is the duration of MBBS in Philippines and BS course and NMAT hard or easy? तो पहले आप स्टोरी बता दीजिए कि आपने कैसे पढ़ाई करी BS course and NMAT and joining MD course, कैसे किया था? Okay, so I came here in 2016. उसके बाद में I started with the AB psychology course because in our college it's like AB psychology. Yeah, I had been गई थी वहाँ पे बताया था. Okay. So उसके बाद में I appeared for NMAT once. Till then it was mandatory to pass NMAT and then enter into the MBBS course. Okay. So I scored around nearly passing percentile, but not the passing one. Then from the next year or the next to next year, it was like they didn't kept it mandatory to pass the NMAT. They just told that it's necessary to appear for the NMAT so that they can show this certificate to the CHED, which is a medical organization over here.
So you can enter into the MBBS course, and then your degree will be mandatory for this MCI program, अच्छा अच्छा, तो like सिर्फ that. अभी अभी आप ये कह रहे हो कि सिर्फ शो करना है, इट्स ओनली रिक्वायरमेंट टू अपीयर Yeah, लाइक, नॉट टू रियली क्वालिफाई इट. no, it's not required for our college, or you can tell it is not required for foreign students over here. एग्जैक्टली, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि फॉरेन स्टूडेंट्स को एनमैट को क्लियर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, राइट? Yeah. ओके, एंड ठीक है, एनमैट के बारे में बताइए. अगर किसी को करना भी पड़ता है मान लो, तो एनमैट क्लियर करना इतना डिफिकल्ट है क्या? जो लोग बहुत डराते हैं बच्चों को कि एनमैट बहुत नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स लाइक जैसे हम लोग नीट देते हैं इंडिया में, इट इज फार मोर डिफिकल्ट देन एनमेट. नीट, या, सो एनमेट इज जस्ट लाइक 11th-12th का बेसिक कोर्स जो आप कर सकते हैं, जो आपने 11th-12th में बिना किसी कोचिंग वगैरह के भी कर रखा होगा. एंड बेसिकली इट्स मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग, सो लाइक दैट. It's not that difficult. There are many. रीजनिंग होता है, राइट? Yeah, you can get test books over here for practice and revising in bookstores over here in Philippines for NMAT. So you can go through it and it will be easy for you. तो आप कह रहे हो आपने 40 परसेंटाइल लाके आपने क्लियर किया था क्योंकि तब कंपल्सरी था. Yeah. ओके ओके, पर अभी जो शेट की वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है 40 को, तो अपडेट होने वाला है वो? हाँ, of course, because right now, like a new batch was getting enrolled in the MBBS course, so it was mentioned that they don't have to clear NMAT. It's just necessary to appear for that. Wow, that's really nice. अच्छा, और NMAT के बाद आपका 4 ईयर का MD कोर्स होता है? हाँ. Okay. After AB psychology, we have to appear in that MD course, and it's easy, not a big deal. And और ये जो आपका AB psychology कितने ड्यूरेशन का था? Mine was 1 year, but now I think they have increased the duration of the course. हाँ, 1.5 year to 2 year. Yeah. Depending on which college, which university you're choosing. Yeah. For our university, I guess it's 2 years or 1.5 years now. 1.5 years. अच्छा, and उसके अलावा आप मुझे बताइए कि जो other countries भी आपके ऑप्शन में आई होंगी जब आप सोच रहे थे कि आप अब्रॉड जाओ, तो कैसे आपने फिलीपींस का, ऐसा क्या लगा आपको कि बेटर है? एक तो यहाँ की लैंग्वेज, the first and foremost thing for me considering Philippines is that you won't be having any language problem over here, because mainly it is an English speaking country, so there won't be any problem. होती है यहाँ पे भी, there is some local language also, people speak that, but you can understand it after staying here for 1 or 2 years, so that is not very necessary to learn. But if you don't want to learn a language, yeah, can you survive in Philippines? Of course, no problem, because frankly speaking, like all the sabji walas over here also knows English. Oh, so yeah. That's better. It's the fifth largest country to know English as a language. Yeah. And it was feasible also, like expenses wise also it was nice. Atmosphere, it is very, friendly for Indians, what I got to know, and after staying here. So like many Indians are here, even Indian businessmen or Indian everything. You cannot find any problem regarding food or anything, because there is a lot of Indian food over here. Yeah, of course it is expensive, because of course it's in a foreign country, but abroad में मिलना थोड़ा expensive होता ही है. Yeah. लेकिन आप शायद मेस भी अवेलेबल है वहाँ पे, राइट? Yeah. सब कुछ है. Like when I came over here, I remember only 2-3 canteens were there near my college, like Indian canteens. But now it's like whole hub of Indian canteens over here. So, क्लाइमेटिकल कंडीशंस के बारे में भी आप काइंड ऑफ यही बताओगे कि अच्छा ही है, स्नो वगैरह? No such problem. We can survive. We Indians, North Indians, can survive over in this climate, because we already come from very hot climatic conditions. So it's okay. Okay. And ये बताइए कि आपका जैसे यूनिवर्सिटी जो है काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, one of the largest universities, and
आपका जो अभी 4th ईयर में क्लिनिकल चल रहा है क्या, क्लर्कशिप चल रहा है क्या? Clerkship I'll start after 2-3 months. क्लर्कशिप 2-3 Uh, के बाद शुरू होगा? yeah, it's my last sem going on now. अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपका क्लर्कशिप शुरू हो जाएगा। हाँ. इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इफ आई स्टार्ट एट 22 फॉर एमबीबीएस इन फिलीपींस, देन एट व्हाट एज विल आई ग्रेजुएट? Okay. So 27, if you are not failing on in any semester, you will successfully get past 5 years में हो 27. जाता, 5 Yeah. बट 7 एंड में इनका क्लियर हो जाएगा बेसिकली। Yeah. Which is the best university in low budget in Philippines? It's difficult because every university has its own pros and cons. Some is low in budget, but you can't get that much knowledge. So it depends. Like I am studying in University of Perpetual Help, so it's good wise expenses also, studies also, and a good curriculum. You can say that. अच्छा, मनीला सिटी कैसी है आपका? मनीला की थोड़ा दूर है ना आपका? मैं बाय कार हाँ, we come under Metro Manila. मेट्रो मनीला, यस 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 यस। आई हैव टू पास सम एरिया, उसके बाद आपका ये आया था। Yeah. मेट्रो मनीला। तो कैसा है मेट्रो मनीला, कितना डिफरेंट है मनीला से? Manila is like a cosmopolitan city, like very nice. it's huge, yeah. But Las Piñas is kind of a small city because in Manila it is divided into some small cities. So Las Piñas is one of that city, and it is, I think, 7 to 8 kilometers away from Manila, main Manila region, from airport we can say. Yeah. And it's okay, fine. Like we can survive in the city. All basic necessary needing things are all available over here. एंड स्टूडेंट का एरिया टाइप है तो वहाँ पे सरवाइव करना इजी सा रहता है। हाँ. अच्छा, वहाँ पे हॉस्टल्स, आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हो? Yeah. For me, for my consultancy, it was like for the first year, I have to stay in the consultancy dorm. Then you can change into your private accommodation, whether a house, a studio apartment, or whatever you like. Right. एंड एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, आप भी पढ़ सकते होंगे, मैंने सुना है वहाँ टीचर्स को पैसे देकर भी पास हो जाते हैं। ऐसा तो कहीं पे भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक, डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लाइक इन सम यूनिवर्सिटीज है ऐसा। नहीं, मैंने मेरी कॉलेज में ऐसा कभी सुना नहीं। क्यों? हाँ, मैंने फिलीपींस में सुना नहीं है, मैंने भी नहीं सुना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और कंट्रीज में सुना है मैंने, बट नॉट इन फिलीपींस। Yeah. तो बच्चे फेल, basically it's not like that. Fail होते हैं तो you have to get 6 months drop, then you have to take a DSWD course. तो आपको वो सब्जेक्ट वापस पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में you can get into next year. उसको पास करने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ता है। हाँ, for 6 months. Okay. Somebody is also writing comparing Ukraine and Philippines, which is a better city. वैसे कंट्रीज हैं दोनों, बट सिटी लिखा हुआ है उन्होंने। Comparing Ukraine and Philippines, which is a better city? आपको तो I can मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, later. अच्छा, about that स्टडीज के बारे में मैं पूछ रही थी कि हाउ क्वालिफाइड आर द टीचर्स, दे आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स और दे आर जस्ट टीचर्स, प्रोफेसर्स, कैसे? No, they are practicing doctors. All of them are practicing doctors. They have clinics, and they also have their duties in our college hospitals. They teach us many things in the clerkship. So they are highly graduated. Some of them have cleared USMLE also, and they are teaching us like that. तो USMLE दिए हुए टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो it's nice. So you can get the guidance also about USMLE later on. Yeah, they are like very interactive teachers. You can ask them questions and they can give you positive answers, not the negativity. So depends upon you how you question them. If you're questioning their degree, then of course it's not like they will answer you properly. Right. In case if the student don't want to come back India, in that scenario, are those Philippines university ready to accept the candidate without NEET UG? Well, this is my answer. My question, I'll answer this later.
आप अभी फिलीपींस में हैं, कोरोना हम्म, चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, कैसा है हम्म। फिलीपींस में अभी, क्या स्टेटस है? इंडिया से बेटर कंडीशंस है. नंबर ऑफ केसेस आल्सो आर लेस देन इंडिया, वेरी लेस देन इंडिया. वेरी लेस। Approx 34,000 cases are over here. हम्म। Since it was started here, January 30th, I think the first case was here, January or February. हम्म। So till now it's 34,000. हमारे यहाँ पे अब 20,000 पर डे का रेट चल रहा है यहाँ Yeah, yeah. पे। India. So there is no such problem, scarcity of food, or there is nothing like that. You can get everything, anything. Just you have to get some passes for going out and for your गुड, homes. दैट्स It गुड, is mandatory. Yeah. वेरी गुड, बिकॉज आप अगर आपको इतना लिबर्टी के साथ भेज देंगे तो आप भी सोचोगे ठीक है, ये भी वो भी बहुत सारी चीजें होंगी। Huh. And there is a lot of police outside, so you can't go and roam around in the streets like that. एंड पुलिस के बारे में सुना काफी एक्टिव पुलिस है यहाँ की फिलीपींस। Yeah, yeah. हाँ, थोड़ी है. Like the president is very strict over here regarding all these issues. So he has instructed, before he has instructed everyone to stay indoors if they are not following the quarantine rules. Then maybe they can be shoot at the moment only. Something like that was done. तभी लोग अंदर रहे। हाँ, इसीलिए some discipline is here. प्रैक्टिकल्स मैं हॉस्पिटल पे गई थी जब मैं फिलीपींस आई थी, और आपके जो ये अच्छा. वाला हॉस्पिटल है वहां पर भी मैं गई थी, डेल्टा Yeah, डेल्टा yeah. है ना? तो हाँ, वहां पे मैं देखा पेशेंट फ्लो तो काफी अच्छा है। हाँ. आपको Patient intake अच्छा है, and the patient are also like they all can interact in English. The basic thing is like that. तो आपको लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करने की जरूरत कम होती है थोड़ी. जब यू तो कोई कैन बहुत ज्यादा ऐसा ओल्ड ना हो, है ना, ज्यादा ओल्ड हो तो शायद हाँ, ना बोल पाए। नहीं, ज्यादा ओल्ड भी यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं. इट्स नथिंग लाइक दैट. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, तो अच्छी बात है। बट इट्स ओके इफ यू कैन लर्न द लैंग्वेज. इट्स वेरी बेटर फॉर यू. यू कैन सर्वाइव मोर इजीली. हम्म। तो जब आप जैसे क्या आपको इस चीज का आइडिया है कि मान लो आप पेशेंट के पास जाते हो और उन्हें लगता है कि अरे तो इंडियन है, ये तो फिलिपिनो नहीं है, तो मैं इससे अपना ट्रीटमेंट या फिर चेकअप नहीं करवाऊं? एक्चुअली इतना हम लोगों को नहीं एक्सपोजर देते हैं. हम्म। Just like a patient is entering into the hospital, we हम्म। have to take the history of the patient, or generally what the patient has been through. It depends on department to department. हम्म। Suppose someone is coming to OB-GYN department, then we will take the basic vital signs of the patient, like अच्छा। what is being, then we will pass that to a resident senior doctor. He'll handle the case. We'll just stick by his side so that we can learn many मतलब things. आप उन्हें बताओगे कि मैंने ये डायग्नोस करा है, मुझे लगता है हाँ, कि ऐसा ऐसा है और ये होना चाहिए, तो आपको हाँ. डॉक्टर जो भी है वो शायद आपको थोड़ा गाइड दे देगा उस वक्त कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, या फिर आपने जो बताया उसको सही, मतलब कुछ अपने आप से हम्म. आपकी इंटरेक्शन होती होगी उनसे, राइट? हाँ. हम लोगों को उनके पास ही खड़े रहना पड़ता. लाइक देयर आर मेनी सर्जरीज आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स that we used to assist our professors or whoever is a doctor on call over there, so that we can learn the surgery techniques, or we can learn consultation techniques from there. ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। क्या डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा आप ये बताइए कि रेसिज्म होता है क्या वहाँ पे आपके? नहीं, नहीं, नहीं. It's नहीं, nothing like कि that. इतना फर्क भी नहीं है, हम मतलब इतना कलर डिफरेंस है, कोई ऐसा डिफरेंस? नहीं है, इतना नहीं है. It's fine. Racism is not here. मतलब ऐसा बोल नहीं सकते हम्म। until and unless you poke them to do something like that. But अच्छा। आपका रिलीजन वहाँ पे ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है ना वहाँ पे? yeah, Christianity है. ओके ओके ओके। आप खुद राजस्थान जोधपुर से हैं, आपके साथ और भी हाँ, लोग हैं यहाँ के, जोधपुर के राजस्थान के और भी हाँ, लोग? बहुत से हैं. मेरी कॉलेज में ही आई थिंक देर आर अराउंड 30-40 people from Jodhpur, Rajasthan. Maybe more than that because I'm not aware of juniors. So like that. अच्छा, एक र्यूमर है, मैं पूछना चाहूंगी कि भाई ये बोलते हैं भी एबी साइकोलॉजी के लिए ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, फिर एमडी में बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, ये कितना सच है? नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक आप एबी साइकोलॉजी में आते हो, फिर आप लोग क्या है कि यहाँ पे सीनियर्स होते हैं. दे टेल यू अबाउट मेनी कॉलेजेस, लाइक सॉरी, किसमें कहाँ क्या पे फीस कम है, वहां पे इजीली पास कर देते हैं उस कॉलेज में, ऐसा वैसा. सो बच्चों का कभी कभार दिमाग चेंज हो जाता है. लाइक वील गो टू दैट कॉलेज सो दैट वी कैन पास इजीली. बट आई थिंक फॉर
me giving a suggestion, you should not change a college because everywhere you will go, either they'll ask for extra money or you have to work hard extra. So I'll prefer working hard extra. ओह वेरी It's नाइस. like that. आई थिंक ये एक्चुअली स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है हमेशा, चाहे वो किसी भी Yeah. कंट्री में हो. वो कुछ स्टूडेंट जो है शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं. हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. Like when I came over here, I used to listen lot of things about college that they are not easily passing us. They have kept a very high maximum passing limit, or they are like passing 75% people. So it was like I was also scared. But then when I entered into MD course, it was going smoothly till now. Touch wood, it's smooth only. Let's see ahead. एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? They are divided into sections, two sections. That is basically on the basis of last name, like surnames. Okay. They put surnames before. हाँ. So depends on batch to batch. मेरे batch में around 330, 340 students है. So they are divided into two sections. So like that. 150, 150 ऐसा? Not necessary. 180 or it's not necessary they divide equal. 180, 130 like that. तो कितने बच्चे होते हैं क्लास में? Around 150, 160 एक क्लास में. अच्छा. और जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो या आप कैडेवर्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कैडेवर्स अवेलेबल हैं क्या फिलीपींस में? है. We have practiced on cadavers, yeah. Okay. And अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. लाइजियम यूनिवर्सिटी कैसी है? ओके, मैं बता दूंगी. हाउ इज डिफिकल्ट इन सिलेबस कंपेयर टू इंडियन कॉलेजेस? क्या आपको इसका आइडिया है? Yeah, many of my friends are studying in Indian government colleges in India. So syllabus में कुछ ज़्यादा difference नहीं है. उल्टा I'll say that here we are studying from Harrison's. Like it's used in PG over there in India, and it's a high level book. So there is a similarity of course. There is of course here professors prefer US authors more. So the level of study is good. Overall. Okay. एक और चीज बताइए, आपने AB साइकोलॉजी पढ़ा, कहीं पे BS बायोलॉजी होता है. हाँ. तो क्या डिफरेंस है कि एक कॉलेज, एक क्वेश्चन पूछा नमिता साहू ने पूछा है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्री-med साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी? Psychology is basically a study of mind, as we all know. So they will divide the course into small subjects, like very genuine or real subjects we can call them. But in BS biology, it's everything related to biology. In my college, it was their option for BS biology, so anyhow I have to go for AB psychology only. But in some colleges there is an option for BS biology, so I'll suggest students to opt for that because it will help you in MD course also. AB psychology, BS biology ज़्यादा better है. Yeah. Okay. Ukraine and Philippines, which is among the two is cheaper? मेरे हिसाब से दोनों सेम है, या फिर थोड़ा बहुत फिलीपींस चीपर पड़ेगा आपको. NMAT is entering BS course or MBBS? NMAT is for entering MBBS. Okay. Still waiting for my answer. Somebody said, ma'am, I guess Philippines is better if you want to do US MLE. What is your take on that? आपको ऐसा लगता है भविका कि US MLE कोई करना चाहता है तो फिलीपींस एक अच्छा तरीका, अच्छा कंट्री है फॉर दैट? या जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे यूएस ऑथर्स रिकमेंड करते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं आपको यहाँ की स्टडीज के लिए भी. सो दे ट्रेन यू अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. फ्रॉम माय सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ मेडिसिन दे started giving us cases to solve. So it was because USMLE is basically dependent upon cases, how easily you solve cases. So they train you according to that only. रिया ने पूछा है 1 year pre-med course is valid. So अब नहीं है रिया, पहले था. अब 1.5 या फिर 2 years का pre-med course valid है. Okay. And is 40% NMAT compulsory? ये भी हमने आंसर कर दिया है कि 40% NMAT, अब 40% in NMAT is not necessary now. No more compulsion. And last, can I crack USMLE if I study in Crimea? तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता. What are my options?
पीजी के ऑप्शन आप जैसे अभी आप क्लियर कर लोगे अपना फिलीपींस में एमबीबीएस, आप आगे आपके क्या प्लान्स हैं? I'll go for FMG first. हम्म Then after clearing FMG, I have to do 1 year residential clerkship over in India. After that, I'll apply for NEET PG. हम्म अभी हो So सकता है आपको, आप after, नेक्स्ट भी हो सकता है आपका, आपके नेक्स्ट भी हो, क्या पता। there is a chances of next, but I think due to COVID crisis and नहीं all, पाएगा। maybe it can get delayed हम्म like that. ओके। सो ऑल्सो आपके पास ऑप्शन है कि आप जर्मनी में पीजी कर लो या आप कहीं और चले जाओ, ऐसा भी तो या फिर आप फिलीपींस में ही नहीं कर सकते आगे पीजी, आपको आइडिया हाँ, है? कर सकते हैं। यहाँ का बोर्ड लाइसेंशियर एग्जामिनेशन अपने को क्लियर करना होता है। आई थिंक दैट्स मच टफ देन इंडियन वन, आई गेस। आई हैव हर्ड फ्रॉम सम तो पीपल। बहुत रास्ते दिखाते हैं, वो मुझे लगता है इंडिया का एफएमजी फिर भी सबसे या इजी है ना? सब पहले हाँ, ट्राई करना चाहिए। first option is our country always. If you are not selected Always, there I and also tell students this only कि इधर उधर नहीं, पहले अपनी कंट्री का लाइसेंस लेने का ट्राई करो, क्योंकि yeah, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ज्योति दोबारा पूछ रही है, एनमैट इज मच टफ, इट्स नॉट टफ, ऑलरेडी बता चुके हैं भविका कि इतना टफ नहीं होता है। अगर 10th 11th 12th का ही सिलेबस आता है और हाँ, थोड़ा बहुत आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग का पार्ट होता है। सो दैट इज इट, आई थिंक बहुत आपने आंसर्स दे दिए। और हाउ सेफ इट इज फॉर गर्ल्स, एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछती हूँ। it's very safe for girls. अच्छा। हाँ, like if I go out in the night like 10 or 11 o'clock also, हम्म so it won't be like जैसा इंडिया में हम लोग नहीं जा सकते, 10-11 बजे बाहर जाना is really a very big thing. हाँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, you can roam around, no problem is there regarding safety of girls. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, Yeah, girls are the safest over here. This I can say. बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। एक पूछे, एनमैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम जस्ट लाइक एम कैट, एनमैट को एम कैट से कंपेयर कर रहे हैं, No, 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 it's nothing like that. है ना? बहुत ही, ये मैं बताऊं, एम कैट यूएस का एग्जाम होता है और वो अलग चीज होती है। एनमैट और एम कैट में जमीन आसमान का फर्क है दिया, तो आप ये मत सोचिए। जहां तक आप लोग पैकेज की बात पूछ रहे हैं, पैकेज के बारे में मैं आपको बता दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनएस ऑन NMAT syllabus depends on 11th 12th NEET और boards. No, ये फिलीपींस का एग्जाम है, इसका 11th 12th और नीट बोर्ड से कोई मतलब नहीं, बट या इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। Basic physics, chemistry, biology is there in ANMET. A little bit of English, mental ability, reasoning. That's all you can say. After graduation from Philippines, am I eligible for PG in Germany? What is the route? उसके बारे में मैं बता दूंगी आप लोगों को। आई थिंक अभी हम सिर्फ इसी के लिए स्टक करेंगे कि अच्छा, आपका जो कैंपस है उससे फिर आपको जैसे आपकी अभी हॉस्पिटल ड्यूटी लगना शुरू नहीं हुआ है ना आपका अभी? नहीं, after 3 to 4 months. तो कितना दूर है Because of हॉस्पिटल? COVID crisis, it is delayed. अच्छा 5 अच्छा, minutes walking distance. 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस है। ओके ओके। और इंडियंस को हॉस्टल वगैरह मिलना भी इजी, मतलब आपको रेंटेड अपार्टमेंट मिलना इजी था? हाँ, हाँ, of course. Actually, अभी Indians बहुत ज़्यादा हो गए हैं, so it's very crowded over here. तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मे बी थोड़ा ऊपर नीचे होता है रेंट में, बट इट्स इजी, इट्स नॉट दैट बिग डील। इफ यू आर 3-4 people, then you can get a big home or like that. आपको क्या एफएमजी कोचिंग मिलती है यहाँ पे, या फिर आप कैसे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हो? एफएमजी के लिए देयर इज नो सच कोचिंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। आपको, आप जो पढ़ते हैं इन 4 सालों में, दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर स्टडीइंग फॉर एफएमजी। और ऐसा ऑनलाइन देयर आर मेनी एप्स नाउअडेज। मैरो, यू कैन सब्सक्राइब टू मैरो, प्रेप लैडर फॉर एफएमजी। तो आप यहाँ बैठ के भी वो पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट, इफ यू वांट टू हैव अ कोचिंग इन इंडिया, देन यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस इन दिल्ली। फटाफट क्रैश कोर्स कर लो, एक रिवीजन कर लो। हाँ, या लाइक दैट। आई नो, पता है स्टूडेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं, मैम फर्स्ट ईयर से एफएमजी कोचिंग चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर से तो आप करके भी कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट ये बात एनी मैं यूज। समझा समझा के थक गई हूँ कि आप पहले पढ़ो तो यार, कोचिंग कैसे ले लोगे पहले उस चीज की, राइट? नहीं, पर पहले 4 साल तो आपको जस्ट जो बेसिक चीजें हैं विच यू शुड लर्न ओवर, तो आपको वो आना चाहिए। एफएमजीज, आप
बहुत बड़ी चीज है जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ, उसको तो एक तरह का आपको रिवीजन है, एक तरह का आपको देखना है कितना आपका रह गया है, कितना सिलेबस आपको और पढ़ना है, वो सब आई थिंक हाँ, बहुत सारा होता है। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही आप अच्छे से पढ़े तो एक तरीके से आप एफएमजी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हुआ है, हाँ। मुझे लगता है कि बच्चे एमबीबीएस कुछ और सोचते हैं कि एमबीबीएस कुछ और है और एफएमजी कुछ और है, बट इट्स सिमिलर, इट्स नहीं, आई थिंक देयर इज अ मिथ इन सम पीपल्स माइंड ओवर इन इंडिया कि ऐसा होता है कि बाहर एमबीबीएस कोर्स इज वेरी इजी कंपेरेबल टू इंडिया, इंडिया में बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, एमबीबीएस आप कहीं पे भी करोगे इट विल बी डिफिकल्ट। ये डिपेंड कर सकता है कि कोई कंट्री में आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, कोई कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, बट सिमिलर कोर्स एवरीवेयर यू विल फाइंड। और आफ्टर एफएमजी आप सब एक ही लेवल पे होंगे, whether you are studying from Indian colleges or foreign colleges, it's like that. एग्जैक्टली। उसके बाद आपको कोई टैग नहीं होता, आपको एक लाइसेंस नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल हाँ, जाता है, एंड यू आर इक्वल। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनमैट का प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, आपने आता वो वहां से कोई बुक मिल जाती है फिलीपींस से एनमैट के। हाँ, यहाँ पे जब आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत से लोग बता देते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जस्ट सीनियर्स, दे विल टेल यू दैट यू कैन फाइंड बुक्स इन बुक स्टोर्स फॉर एनमेट प्रिपरेशन। हम्म 3 या 4 बुक्स आती है, उसमें एक फिजिक्स मॉड्यूल होता है, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक रीजनिंग का होता है। सो हम्म यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट ऑल्सो। उसमें नोट्स भी होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट टाइप्स। हम्म आपको आई डोंट नो, मुझे ये नॉलेज है कि अगर किसी ने इंडिया में ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएससी कर लिया है, तो वो हम्म। सीधा यहाँ पे एनमैट में अपीयर हो सकते हैं। हाँ ठीक, दे कैन एनमेट में तो कोई भी अपियर हो सकता है, लाइक यू आर कमिंग एंड उनको ये ए बी साइकोलॉजी और बीएस बायोलॉजी नहीं करना पड़ेगा। नहीं करने की जरूरत है, आप एनमेट देके सीधा आप एमडी में एनरोल हो सकते हैं। एमडी में एनरोल हो सकते हो, राइट। एक कह रहे हैं व्हाट अगेन वी हैव टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स इज द बेसिक पार्ट, हाउ कैन यू लीव फिजिक्स? लाइक अगर आप नीट भी क्लियर करते हो इंडिया में तो यू नीड फिजिक्स फॉर एनमेट ऑल्सो। एटलीस्ट यू नीड बेसिक फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स और एनीथिंग। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए सो दैट यू कैन एटलीस्ट सॉल्व 4-5 क्वेश्चंस इन द पेपर लाइक दैट। ओके ओके ओके। हाँ चलो, आई थिंक ये जो दो तीन क्वेश्चंस थे जो कि ऐसे थे जो मुझे भी नहीं पता था, आपने मुझे बता दिए हैं, थैंक यू सो मच। नो नो, इट्स ओके। एंड आई थिंक और कोई क्वेरीज, कोई स्टूडेंट की क्वेरी है वो तो भाई यू कैन, आई थिंक यहाँ पे तो सब कुछ सॉल्व। एक कह रहा है प्लीज हेल्प मी मैम, जो आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो एनोनिमस अटेंडी, आपका नाम नहीं दिख रहा है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपको? One is saying is the curriculum based on US pattern? काइंड ऑफ, वी कैन से, Kind of. बिकॉज यहाँ से जो फॉलो लोकल करते हैं। फिलिपिनोज हैं हम्म वो लोग यूएसएमएल ही देना प्रेफर करते हैं, सो सेम सिलेबस इज यूज्ड फॉर अस आल्सो। हम्म ओके हाफ हाफ वी कैन टेल। ओके ओके। अरविंद सिंह राठौर कह रहे हैं मैम माय क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन, एफएमजी की पासिंग रेशियो बहुत कम है, अगर क्लियर नहीं हो तो आगे क्या कर सकते हैं, क्या आपको इसका आइडिया है? नहीं, आपको डरा मैंने रहे अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सोचा है, बिकॉज फॉर मी माय एम और गोल यू कैन टेल इज जस्ट क्लियर एफएमजी एनी हाउ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इवन मेरी भी बहुत डॉक्टर से बात होती है, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको जो करके डॉक्टर्स बन चुके हैं, सर गंगाराम हो गया या फिर आपका आरएमएल हो गया, सब में काम करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में चांस थोड़ा 50-50 हो जाता है, या फिर करो 70-30 होता है कि मान लो 2 मार्क्स से भी रहते हैं कुछ लोग, मान लो 3, हाँ। कभी आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा गैप रह जाता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट 6 महीने बाद होता है उसमें वो उतना एक्सेल कर देते हैं जितना से 175-200 मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो अगर आप और मेहनत करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना भी पॉसिबल होता है एफएमजी को, इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो कुछ ऐसी परसेंटेज होती है जो 5 to 10 मार्क्स से गैप से रह जाते हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा होता है। तो आप ये मत समझो कि अगर आपका नहीं हुआ तो बस अब मेरी जिंदगी खत्म, अब तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। 6 महीने बाद आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो और उसे क्लियर कर सकते हो। इफ यू हैव द विल यू कैन डू दैट, है ना? आप एमबीबीएस कोर्स ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, एंड इफ यू आर अल्टीमेटली नॉट गेटिंग इनटू एफएमजी, और अगर आप उसका ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो देन तो फिर आई डोंट थिंक एनीवन शुड चूज एफएमजी एमबीबीएस। कोचिंग नीट के लिए 1-1 2-2 3-3 साल लगाते हैं एलन में, कोटा में, हाँ, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, और यहाँ तो 6-6 महीने में एग्जाम हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। एनमेट में कितने अटेम्प्ट हैं? दिस इज अ गुड क्वेश्चन।
जब तक आप देना चाहो, बट अब इंटर्नशिप से पहले पहले तक। बट अब तो आप कह रहे हो कि उसमें 40% लाने की जरूरत हाँ, नहीं है, उसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपका अटेम्प्ट की बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। एक दे बार अपेयर करो एंड यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू एमडी कोर्स। yeah. And once there's clinical orientation based questions comes in and 10% of BMS in coming one, I don't know, ये तो कुछ अलग ही question है। At Dr. Bhavika Jain, I heard some campuses are tie-ups with Kaplan for USMLE, like that your university where you have been studying having such tie-ups. No, I haven't heard that. Somebody saying please don't say Ellen here, done with that. Ma'am, which I am college also from from? Allen. भाविका आप कौन से कॉलेज से हो बता दो उन्हें दोबारा से। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम डेल्टा से हूँ, जो कि लास पिनियास में है। उसकी और भी 2 ब्रांचेस हैं, बट आई एम इन लास पिनियास। Which is the best branch? I think Las Piñas is the best branch. Las Piñas one is the best branch for foreigners. So I think that is done. भाविका अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं दोबारा आपको बॉदर करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे It's okay ma'am, no problem. कि आप हेल्प शायद कर सकते हो। और जो पैकेजेस वगैरह पूछने हैं तो मैं अभी आपकी, हाँ कुछ बोलना चाहते हो आप, एंड नोट में कुछ कहना चाहते हो? Nothing like that. I'll just say that This is if for the students who are thinking and who are skeptical about studying MBBS abroad. उनको लग रहा है कि क्या ये सही डिसीजन रहेगा नहीं रहेगा। अब आप यहाँ पे हो, आप 4th ईयर में हो, आपने पूरा अपना BS कोर्स जो भी BMed कोर्स कर लिया है, NMed दे दिया है, आप ऑलमोस्ट आपको डिग्री मिलने वाली है। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बाद आप चाहते हो कि हाँ ये मेरा अच्छा डिसीजन था और मैं खुश हूँ। many of them over here are asking about money, fee structure and everything. The first and foremost thing I'll say that अगर आप लोग मेंटली इतने स्टेबल हैं कि आप एक फॉरेन कंट्री में अकेले सर्वाइव कर सकते हैं एंड यू आर डिटरमिनेंट फॉर योर गोल, योर ड्रीम, तो पैसा वैसा इज एवरीथिंग सेकेंडरी, यू कैन गो एनीवेयर एंड डू दैट। बट अगर आपको सच में करना है तो आई थिंक there is no big deal in coming to abroad. other countries or doing something like MBBS over here. Just main thing is determination for whatever you do. ये डिटर्मिनेशन हर जगह जरूरी है, चाहे आप इंडिया में Exactly. इंडिया में भी आपका नंबर आ जाएगा तो ये तो ना कि पढ़ाई खुद ब खुद हो जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम भी पास करने पड़ेंगे। तो ये बस है कि अब्रॉड की एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर लो और उसमें अच्छे से जाकर पढ़ो। ठीक है भाविका, थैंक यू सो मच। एंड ये सेशन मेरा बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू एक्सेप्ट माय। कल ही मेरी भाविका से बात हुई और आज ये मेरे से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, Thank you, ma'am. Thank you so much. All the best to everyone who was listening. Please take your decisions very nicely, like after thinking a lot on that. और उसी के लिए हम लोग ये सब डिस्कशन भी कर रहे हैं एक्चुअली। Thank you so much. Thank you, ma'am. Can I leave? Yeah, you can leave. Okay, thank you. So yeah, I'm back. एंड अब आपके जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक सेकेंड। सो एक बार लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर अमृतसर से लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर। विकास गुप्ता, विकास आपके क्वेश्चन था और मैंने आज ही अभी आपको बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, तो अब आप बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं। Why most of students going to Russia, Ukraine instead of Kazakhstan? Even Kazakh National Medical University is good option for 5 years. It is. Who is stopping you? Davao Medical College की tuition fees, it's $5,100 per year, guys. ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका लाइजियम है, एक यूनिवर्सिटी है लाइजियम, वो सबसे लो कॉस्ट है। लाइजियम का कॉस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। One second.
लाइजम सबसे ज़्यादा इजी है और इजी कह रही हूँ, सॉरी, चीप है। अब वहाँ पे आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है हमारे बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप, तो आप अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे इस तरह से इसमें आपको सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है लाइजम। एंड इसकी फीस जो है इट्स 5,98,000। जो BS कोर्स होता है आपका, उसकी ऑलमोस्ट 6 है। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, एक मिनट। दवाओ इज अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिए। और मैं तो यही बोलूंगी कि आपको ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी, एक तो सिटी से दूर भी यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं होती। वहाँ पे जो है आपके क्या क्या चीजें फैसिलिटीज हैं वो देख के आपको रहना चाहिए। दवाओं का जो फीस स्ट्रक्चर है पूरा MD कोर्स का, वो है 20 लाख रुपीज। ठीक है, उसके अलावा आपका BS कोर्स का 7 लाख प्लस GST होता है, जो कि आपको अराउंड 8 लाख पड़ता है। तो खाना वाना मिला के 32 से 35 लाख में आपका पूरा हो जाता है। टोटल पैकेज ऑफ MBBS इन फिलीपींस, तो टोटल पैकेज है, देखिए, इट्स अबाउट, आई वुड से दैट मिनिमम 25 लाख रुपए और मैक्सिमम 35 लाख रुपए, बस यही है। मैं आप लोगों को अपना email ID यहाँ पे लिख रही हूँ। Just drop me an email. I will revert you back with the full email of जो जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ का, एक मिनट। It's so easy. Why don't you guys download this app and you will be able to see it. तो यहाँ पे भी 585 है उसका BS कोर्स का। अगले साल से आपकी फीस केवल और केवल 2 लाख रुपए सालाना है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी एंड वेरी गुड। देखिए, पोलैंड का एग्जाम होता है, पोलैंड का एग्जाम शायद हो चुका है। इट्स 28 जुलाई, जून 28 जून को एग्जाम होगा। और इसका एग्जाम देके आपको, अगर आपका एग्जाम अच्छा निकलता है तो आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा, वरना प्रीमेड में एडमिशन मिलेगा। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली आप करें। नेक्स्ट ईयर से फीस डिक्रीज होने वाला है, इंक्रीज। सिर्फ फर्स्ट ईयर जो BS कोर्स 15 महीने का होता है, उसकी फीस हाई होती है। अगले साल से वो 3-4 लाख, 3 लाख के अंदर अंदर फीस होती है बस। ओके okay? When can you go to Philippines? I or you? बेसिकली अभी आप जो BS कोर्स करोगे वो आप 8 महीने का इंडिया में भी कर सकते हो। तो आप जयपुर कैंपस है, पुणे कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, वहाँ पे अपना BS कोर्स शुरू कर लो। अभी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जो है 8 महीने बाद फिलीपींस ट्रैवल कर सकते हो। तो कोरोना का भी जो डर है वो खत्म हो जाएगा बेसिकली। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी अच्छी है या MBBS इन फिलीपींस? फिलीपींस का स्कोर ऑफकोर्स थोड़ा बेटर है। जैसे दवाओ इज 60% MCI पासिंग रेशियो, परपेचुअल का भी 33% है, लाइजम का भी आई थिंक 25% है। तो अच्छे परसेंटेज है, इट्स गुड। क्योंकि अभी हम देखो फिलीपींस की बात करें तो मैं आपको फिलीपींस के बारे में बताना चाहूंगी कि भाई फिलीपींस अच्छा क्यों है। ठीक है, यूक्रेन एंड फिलीपींस MBBS इन विच कंट्री इज लॉन्गर? यूक्रेन में 6 साल का कोर्स है। ठीक है, सीधा 6 साल का, आप एडमिशन 6 साल का लोगे और एंड आपका होगा। वहीं फिलीपींस की, यूक्रेन का 6 साल का, फिलीपींस का 5.5 साल का पड़ेगा। इंडिया में BS कोर्स में एनरोल कैसे करें और कितना फीस होगा BS कोर्स का? BS कोर्स का फीस आपका 6 से 8 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग विच कॉलेज यू आर गोइंग। अगर कैंपस यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट है,
तो वो ही होता है. What about your webinar by senior or Ukraine? I think I'm gonna schedule it on Monday. I think this is, I hope you guys like this. This is a good way, right, to answer all the question, right? So जो अभी ये आपका यूक्रेन के साथ भी मैं सीनियर्स के साथ करने वाली हूँ, बेलारूस के साथ भी करूंगी, ऐसे ही मैं सारी चीजें करूंगी. बेटर देन यूट्यूब, दैट्स वेरी नाइस. अगर दिस इज बेटर देन यूट्यूब. कुछ लोग बोल रहे हैं यूएस बेस्ड प्रोग्राम है. यूएस पैटर्न इज यूएस. जैसे यूएस में आप सीधा एमबीबीएस में नहीं ले सकते, वैसे आप उसमें भी पूरा सीधा एमबीबीएस में, फिलीपींस में ले सकते. पहले आपको प्री मेड कोर्स करना पड़ता है. ठीक है. हाउ इज दबाव कंपेयर टू परपेचुअल? दबाव में और परपेचुअल में थोड़े से मार्क्स दबाव को थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन फीस स्ट्रक्चर में भी आपको चेक करना है कि आपको कौन सी फीस स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल है. यूनिवर्सिटी हम ही डिसाइड करेंगे ना? डेफिनेटली आप डिसाइड करोगे. एनी आइडिया अबाउट एंजेलस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन? नो, I didn't visit it. I visited 4 universities, and those were the most popular and most many of the students go there. If I get admission in Philippines, when will it departure? देखिए अभी मैं ये बोल रही हूँ, सितंबर से अगर आपका बीएस कोर्स शुरू होता है तो आप 8 महीने के लिए वहां पढ़ोगे. ठीक है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में वहाँ एनमैट होता है. तो आप मार्च फेब के एंड में फ्लाई कर जाओगे फिलीपींस और मार्च का एनमैट अपियर कर दोगे. फिर आप बाकी का जो बीएस कोर्स है वो फिलीपींस में कंप्लीट करने के बाद वहाँ का उसमें एंटर कर जाओगे एमडी कोर्स में. बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है. आप बेलारूस इतना प्रमोट क्यों करते हो? क्या प्रॉज एंड कॉन्स है? इतना प्रमोट, मैं हर चीज को जो अच्छी होती है उसको प्रमोट करती हूँ, है ना. तो इतना अभी मैं बेलारूस का नाम तक नहीं ले रही है, आप ले रहे हो, है ना. तो बात ये कि अगर कोई अच्छी कंट्री है, लोग यूक्रेन रशिया जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि रशिया से बेटर ऑप्शन बेलारूस है. तो बताना तो किसको पड़ेगा? जिसको नॉलेज है वही बताएगा ना आपको. तो अच्छी चीजें बतानी चाहिए. Anima, I know you are in touch with us and you touch in with me, and I have received your WhatsApp messages. I remember. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ. आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको ओवरव्यू दूंगी और फिर डिसाइड आप करेंगे. ठीक है. मैम, यू नो यू आर सुपर ऑनेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू सो मच. नीट एग्जाम की डेट 26 ही है ना? अभी तक तो 26 ही है. आई होप हो जाए आप लोग का नीट एग्जाम. BS courses done in India or in Philippines? You can directly go to Philippines. अगर आप कहोगे मुझे फिलीपींस में पूरा BS कोर्स करना, आप कर सकते हैं. अभी जैसे कोरोना है, चीजें हैं, फ्लाइट की इमिग्रेशन, तो आप फिलीपींस में एक ऐसा ऑप्शन है कि आप यहीं पे इंडिया में रह के जो है BS कोर्स कुछ महीने के लिए कर सकते हो, which is a very good way of saving yourself from international travels. PG in Philippines is better option. You can, if you don't want to come back to India, you should continue that. Is I have to write next to FMG? Depends कि आपका कौन सा वाला शुरू हो जाएगा. अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो आपको FMG नहीं देना, FMG खत्म हो जाएगा ना. नेक्स्ट FMG को रिप्लेस करेगा. Give your number rather than other colleagues. You can ask my colleagues to make make you talk to me. This is my email ID. इसमें आप लोग मेल डाल सकते हैं. What about Bitips State Medical? I don't know the proper name. I just, yeah, Bitips is very nice university. सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट्स बेलारूस में वहीं जाना शुरू करे थे. मैंने सुना है कि अमेरिका से करेंगे तो इंडिया में एग्जाम नहीं देनी होगी. अमेरिका से करेंगे, उसमें बहुत एक बड़ी बात है. अगर आप अमेरिका से करेंगे तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है. तो वो उसका प्रोसेस, मैंने MBBS इन USA की भी वीडियो बनाई है, उसे आप देख लीजिए. सो हम पूछ रहे हैं कि अच्छा एक वो लिख देना ईमेल ID वाई, इधर देख लो.
इनको सारी डिटेल्स दे देना ऑफ फिलीपींस. इफ यू हैव डन टिल 12th, अगर आपने 12th तक किया हुआ है तो आपको BS कोर्स करना है, बिकॉज 12th का जो है पूरा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. इसमें अपनी ईमेल आईडीज भेज दो. अभी मैं कॉपी पेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो नमिता साहू, अगर आपने 12th तक किया हुआ है, आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया इंडिया से, तो डेफिनेटली आपको BS कोर्स करना पड़ेगा, प्रीमेड करना पड़ेगा. इट्स कंपल्सरी. ओके. आफ्टर BSc BS कोर्स नहीं करना पड़ेगा, नहीं. अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया, BSc कर लिया, BDS कर लिया, B फार्मा कर लिया, कोई भी तरह का बैचलर कोर्स कर जिसमें बायोलॉजी मेजर है, सॉरी बायो मेजर है जिसमें, तो आपको नहीं करना है वहाँ का प्रीमेड कोर्स. नीट इज मैंडेटरी इन फिलीपींस, लेकिन अगर मान लीजिए 2020 का नीट नहीं होता है तो आप अभी जा सकते हैं BS कोर्स के लिए, और 2021 का भी नीट दे सकते हैं और फिर जा सकते हैं आगे के लिए. युक्ति मैम, डू आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन अबव, यू स्किप टू आंसर लेटर देन. हाँ, which was the question? There are so many questions right now. मैम मेरे को कुछ पैकेज के बारे में बताओ. 8860637009 पे व्हाट्सएप करो अपना ईमेल आईडी, मैं पैकेजेस भेज दूंगी आपको. किम जोंग, प्लीज कनेक्ट विद मी. हेल्प मी इन लाइसेंसिंग, लाइक व्हाट? हाय अनिमा, क्या जानना चाहते हैं? आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक टेक्स्ट कर दो, मैं अभी आपको सब बता देती हूँ VN कारासेना के बारे में. ओके. सो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है. ऑफिस इन MP इज इन भोपाल. अच्छा, मैसेजेस आने भी लग गए. थैंक यू वैष्णवी. ऑफिस इन भोपाल. एड्रेस भूल गई मैं. मेरा एक वीडियो भी है, और हाँ दिखाना, इसमें नहीं होगा ना. वीडियो भी है भोपाल ऑफिस, बुकमा यूनिवर्सिटी भोपाल ऑफिस, उसमें पूरा सब कुछ है. BS कोर्स इज either 1.5 और 2 years, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी 1.5 years ही करवा रही है. When will you cover the MBBS in Poland? पोलैंड में देखो 45 लाख के बजट में जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो मैं पहले उन यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज को कवर करना चाहती हूँ जहाँ पे आपका 25 लाख 30 लाख में ही हो जाएगा, है ना. BS courses done in India or Philippines? It's done in Philippines, but you have option of doing in 8, half of it in India. We have 2 campuses. And किसी भी XYZ कंसल्टेंट की बातों में आने से अच्छा है किसी स्टूडेंट्स की बात, जो ऐसे स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं जो नॉलेज पास ऑन करते हैं, वो नहीं जो पैकेजेस वगैरह दे देते हैं, उन लोगों की बातें मत सुनिए आप. ठीक है. साउंड आ रहा है. तो बहुत लोग आपको बताते हैं NMAT ये है वो है. अभी आपने देखा कि NMAT क्या है. ठीक है ना. I want to know about complete tuition fee, hostel, mess, etc. for perpetual help. Anonymous, what is your name? Anonymous attendee कौन है? What is your answer? What is your question, Kim Jong? How can I help you in licensing after MBBS? In what way? You are providing any help after MBBS? What help? Do you have local support in Philippines? Yes. तभी तो मैं आपको भेज रही हूँ. Can you please provide my answers? MCI exam. Am I working in MCI, or even if I'm working in MCI, doesn't makes any sense that you are asking me this question. Yes, yes, Karthik. They are okay with accepting students without NEET UG.
I have to write FMG or next. Oh God, मैंने अभी तो बताया आपको कि अगर आपका FMG, अभी तो FMG देना है, अगर नेक्स्ट अभी अभी उस गर्ल ने बताया कि नेक्स्ट अगर एग्जाम आएगा जो कि अभी लग नहीं रहा आएगा तो अभी FMG चल रहा है, जब नेक्स्ट आ जाएगा तो उसको टेक ओवर कर लेगा. ओके. Can I do part-time job during the MBBS in Philippines? No, you should not and you cannot. So what I want to say is I'm going to put this video on YouTube and definitely you guys can see over there अगर आपने कोई part miss कर दिया तो. I hope you have already subscribed me on YouTube already because the next also other videos I'm going to put up there. Also, in case you want me to talk to your parents, please be free to call me on WhatsApp and make me talk to them. You can have them on Zoom call just like this, or you can have them on WhatsApp call. आप बात करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स से to convince them. Okay? जहाँ तक पेंडेमिक की बात है, अभी उन्होंने बताया कि फिलीपींस में she is staying and she is feeling much more better there. So overall, don't waste your year here in India. Okay? मैं अभी खत्म कर लूँ ये जो जूम है कॉल है, उसके बाद मैं पैकेज भेज देती हूँ आपको, क्योंकि मेरे फोन में ईमेल आईडी आए, मैं अभी दे दूंगी उनको, वो भेज देंगे. ठीक है, जस्ट वेट फॉर लाइक 10 minutes more. And when will Davao University start to run? One second. ऑलरेडी लेटर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, नाम नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, लेटर्स आ चुके हैं दवाओं के, तो दे आर सेंडिंग अस, sending the documents, you can send me the documents, I can send you the admission letter. परपेचुअल का पूरा फीस स्ट्रक्चर आपका वही 25-26 लाख तक है, सब कुछ मिला के. दवाओं में अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका BS कोर्स, अगस्त 5 से. ठीक है, तो प्लीज आप जो है अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. अप्लाई फॉर दवाओ, अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्प एंड यू कैन डेफिनेटली get all the information from us. Contact us. This is our toll-free number. जल्दी कनेक्ट करने के लिए, जल्दी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये कर सकते हैं, या ऑन जूम कॉल, यू कैन डू दैट. ठीक है, thank you so much for joining me here, and it was a really pleasure to help you out guys for this. And we had 3 attendees raising hands. आप कुछ बोलना चाहते हैं? विशाल, are you there? You can turn on your microphone. Okay, he's not there. धीरज, आपको कुछ बात करनी है? धीरज बात. Yep. Hello. धीरज. मैम मुझे पैकेज के बारे में जानना था. किसके बारे में? पैकेजेस मैम, जो अमेरिका में हो. अमेरिका का पैकेज? हाँ मैम, वहाँ का मेरे को कॉल आया था, तो मेरे को 35 लाख का बोला था उन्होंने. वो कैरेबियन कंट्री में आपको भेज रहे हैं, अमेरिका नहीं भेज रहे वो आपको. मैम उन्होंने अमेरिका ही बोला, और उन्होंने वही बोला कि आपको 5 ईयर मतलब MBBS करने के बाद आपको. हेलो, बोलो बोलो. उन्होंने बोला कि आपको 5 ईयर MBBS करने के बाद में आपको एग्जाम देनी होगी, तो आपको फिर 2 ईयर के लिए PG फ्री हो जाएगी आपकी, और उसके वो जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी, कल क्लियर हो जाएगी, तो आपको इंडिया में आके MCA एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी. आपको लगता है आप US असेंबली पास कर लोगे? लगता है, इसीलिए तो. लगता है आपको ऐसा? हाँ मैम. आप एक बार IELTS एग्जाम दे के देखो, आपकी इंग्लिश उसमें वो देखेंगे कि कैसी इंग्लिश है आपकी और कितना आपको उसमें वो मिल रहा है, तब जाके. US असेंबली देने का मतलब है 12-13 लाख रुपए खर्चा है.
तो मैम उसके लिए अपने को पैसे देने पड़ेंगे एग्जाम के लिए? मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ना, उस पर कांटेक्ट करो, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, ठीक है? ओके ओके। थैंक यू। विशाल, हेलो विशाल, हेलो, ओके। So guys, I'm getting your details and definitely आप इस नंबर पे मुझे कॉल करिए और we'll talk about it, and I think I'll take your guys leave. It was a very nice session and definitely I hope कि आप लोगों को अपने questions के answers काफी हद तक मिले होंगे. Okay, so I've shared my number and you can guys can contact me over there. Okay, take care. Bye.